Thank you very much for joining us for this important session at the Bharat Mandapam. And who better than a powerhouse creative figure from the Bollywood, from Indian cinema, Yami Gautam. A round of applause for the star who has joined us all the way from Lucknow where she was shooting. And just for this session, she has joined. Sameer. यामी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका TV9 भारतवर्ष के TV9 ग्रुप के इस मंच पर। और सबसे पहले मैं शुरुआत इस बात से करना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश से निकलकर माया नगरी मुंबई में इतना बड़ा मकाम हासिल करना, आपकी जर्नी जो है वो बहुत इंस्पायरिंग है। हम लोग सुनते हैं बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में ग्रुपिज्म है, नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, कैसे किया आपने? पहली बात धन्यवाद इतना बड़ा मंच देने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। कई बार लगता है कि सवाल आपका ज़रूर छोटा है पर बहुत गहरा है, तो समय निकल जाएगा। कभी कभी लगता है अपनी लाइनें शायद ठीक से बोल लेती हूँ, पर ये कैसे सम अप करूँ इतने से अपनी जर्नी को। यही कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी ज़रूर थी कि वक्त लग सकता है, बट नींद सही आनी चाहिए। कई बार ऐसे कुछ कहते हैं कि आप खाते ज़्यादा अच्छा है, कुछ लोग सोते ज़्यादा अच्छा है। आई थिंक अगर चैन की नींद मिले आज के टाइम में या पीस मिले, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप चाहे कहीं से भी हो, पर अगर आप टैलेंट में बिलीव करते हैं, अगर आप बिलीव करते हैं, विश्वास है कि आप में टैलेंट है, आप क्यों आए हैं इस इंडस्ट्री के लिए? क्या आपको ग्लैमर ने अट्रैक्ट किया है, क्या आपको कोई और आपका कोई रीज़न है? मेरा रीज़न बहुत साफ था शुरू से, मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे परफॉर्म करना है, मुझे अच्छा काम करना है। उस अच्छे काम के पीछे बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स भी होंगी, बहुत सारे उसे बोलते हैं देयर आर टाइम्स व्हेयर यू क्वेश्चन योर डिसीजन कि क्या ये जगह सही है मेरे लिए, मुझ जैसे किसी व्यक्ति के लिए, या कोई जो जिस तरह की मेरी सोच है, अगर इफ़ एनीवन थिंक्स लाइक दैट। क्योंकि मैं कभी डेस्परेट नहीं हुई काम के लिए। मुझे ना बोलना मैंने सीख लिया था कि नहीं करना तो नहीं करना। अगर दिल से आवाज़ नहीं आए या मन की आवाज़ को हमेशा सुनना बहुत ज़रूरी है। तो वक्त लग सकता है, पर होगा वही जो सही होगा, और वो मिलेगा ज़रूर एक दिन, अगर आप डटे रहें और अगर आप सही अपॉर्चुनिटी को देखने की और परखने की अगर आप समझ रखें। From Vicky Donor to Uri to Article 370 and finally Dhoom Dhaam. What a powerhouse of creativity, really. But I want to stress on Article 370 of 2024, the 100 crore plus film that you single-handedly led the initiative. And what a plot, really. I would say I've seen dozens of films in 2024. It was single-handedly led, and what a powerhouse of performance that no other actress really can come across in the film industry in 2024. So how did you manage this? This was truly a national award-winning film in many ways. I think you're being very kind for your words. I can only thank you. National award, I think it's one of the few prestigious awards which are left now, not just in the industry, but it's a massive honor for anyone, not just an actor, but any artist, any technician who gets awarded. So, wo to pata nahi, but my father won his national award last year. Aditya's won, so I don't know what's going to happen, but of course it'll be nice to have that little wall of honor, we call it at home, to continue. But Aditya, to be honest, it's the power of writing. It's always the power of idea. I'm thankful to the other Aditya for writing it, Aditya and Lokesh for backing a film like this. And I'm sure against the normal trend in the industry where you show a female actor, especially of course I've done work in the past, but I hadn't led, जिसे बोलते हैं, or headlined a film. Thankful to Priyamani for playing such an important part though. And but Aditya and Lokesh, they were very clear that we know that we are very sure this is something, we need an actor, we need someone who believes in the script and who can just perform. And of course I was very nervous. It was a very heavy duty role. Zuni Haksar, it's also very special because in the film you realize you don't know she's a Kashmiri Muslim, you don't know she's a Kashmiri Pandit. The most important thing was she's an Indian
officer and what goes behind, जिसे हम बोलते हैं कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है to ensure peace in the valley or in the country, जो हमारे real heroes हैं, जो agencies हैं, policing है, ministry है, जहाँ पे हमारी सोच ख़त्म होती है शायद वहाँ उनकी सोच शुरू होती है. So we cannot even imagine. So I thought that was a lot of responsibility, and I just gave it all. Whatever I had in me, I just gave it everything. अभी आदित्य ने 2 फिल्मों का जिक्र किया, आर्टिकल 370 और उरी, और क्या शानदार फिल्में हैं, मेरी भी फेवरेट हैं. लेकिन आजकल बॉलीवुड के बारे में ये भी कहा जाने लगा है कि बॉलीवुड बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हो गया है. पॉलिटिकल विचारधारा के आधार पर ग्रुपिज्म हो गया है बॉलीवुड के अंदर, और आप बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखती आई हैं, तमाम मुद्दों पर भी खुलकर बोलती आई हैं. आप कहती हैं खुलकर कि मैं नरेंद्र मोदी की फ़ैन हूँ, और जो उनके डिसीजंस हैं हुए इस सरकार में वो आपके भी फेवरेट माने जाते हैं. तो क्या वाकई ऐसा है? क्या बॉलीवुड बटा हुआ है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बेसिस पर? देखिए, हर एक की ऑफ कोर्स अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, एंड मैं ऑफ कोर्स आई एम अ पब्लिक फिगर, बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम ओनली अ सिटीजन ऑफ दिस नेशन. और अपनी जो भी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी मर्ज़ी आपको एक्सप्रेस करना है, आपको नहीं एक्सप्रेस करना है. मैं एज एन एक्टर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं वो कर सकती हूँ कि मुझे बिल्कुल निष्पक्ष होकर, just literally closing my eyes, and that's exactly what I did with Uri and with Article 370. और जो मेरी एक अगली आने वाली फिल्म है, ऑफ कोर्स अभी अनाउंस नहीं किया है, बट इट्स ऑन अ वेरी फेमस केस दैट चेंज्ड द political, social, and there are many more words I'm sure when it came to women's rights. तो वो एक लैंडमार्क केस है. तो मैंने इसलिए नहीं सोचा कि अच्छा मुझे ये उस तरह की फ़िल्म है, या ये एक नाम दिया जाता है, ये जिंगोइस्टिक है, या ये है, या आई थिंक दे आर जस्ट टर्म्स. आई एम एन एक्टर, मुझे जो कहानी पसंद आएगी मैं वो करूँगी, और ख़ासकर जब वो शब्द जुड़ जाता है कि बेस्ड ऑन रियल स्टोरीज़, मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई थ्रिल हो सकता है लाइफ में. ये इतनी जिस तरह की इन्फॉर्मेशन या R&D हम लोग काम करते हैं, अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट मिलता है तो लगता है ऐसी सोच और ऐसे डिसीजंस और ऐसी चीज़ें जो शायद हमें पब्लिक डोमेन में नहीं पता होता, पर ये इट मेक्स फॉर एन अमेजिंग फिल्म. इट मेक्स फॉर समथिंग अ फिल्म जहाँ पे पेट्रियाटिज्म की भाषा है. किसी के लिए जिंगोइज्म है, किसी के लिए पेट्रियाटिज्म है. आई थिंक द होल आइडिया ऑफ गेटिंग द यूथ अंडर वन रूफ एंड मेकिंग देम वन, कि ये है हमारा कंट्री, ये है हमारा नेशन, ये है द सैक्रिफाइसेस ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली बिहाइंड इट. तो आइडिया इज दैट, एंड टू एंटरटेन देम. इट इज़ नॉट अ डॉक्यूमेंट्री, वो एक अलग फील्ड है. वी आर इन एंटरटेनमेंट बिजनेस, हमारा काम है एंटरटेन करना. मेरा काम नहीं है आपको इन्फ्लुएंस करना या अपनी धारणा बताना. नो, आई एम हियर टू टेल यू अ स्टोरी अलॉन्ग विद माई टीम. मुझे लगता है कि फिल्म में पोटेंशियल है टू बिकम अ गुड फिल्म, जहाँ पे आप फिल्म मेकिंग टेक्निक की भी बात की जाए, आप स्टोरी की बात करें कि आपको परफॉर्मेंस में कमी लग रही है. नहीं, तो सिर्फ हम अपने आप को कहीं ना कहीं रोके ना, राइट. एंड दिस इज समथिंग आई एम सेइंग ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम, बट खासकर आर्टिकल 370 के बाद इतने लोगों के मैसेजेस और कॉल्स आए, सीनियर डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स जो who maybe have a different political opinion, but they said the film was really good, and yes, this was something very new for us to know what the establishment has done. So that is the power of cinema in a true good sense. बाकी अगर किसी को कुछ भी कहना है और आगे शब्द लगाने हैं उसकी, तो अब वही है कि कुछ तो लोग कहेंगे हर एक बात पर. लोगों का काम है कहना. But since you're talking about original content, Yami, let me ask you a question on the intersection of real and real life. You know, you spoke and performed so well in Article 370 and Uri, but we had the person just a couple of hours ago here in the same auditorium of Bharat Mandapam who made it happen. Article 370 and Uri. So one is a question, of course, what do you feel about Prime Minister Narendra Modi and his leadership, but specifically talking about, because the topic today is also India's soft power. It's about India's Got Talent. So how do you see the government, the Prime Minister,
and India as a whole taking the soft power global, taking not just Bollywood, but the entire Indian cinema global and connecting that soft power with the audiences abroad as well? I think the times that we're living in right now, as actor, if I say strictly first, we're very fortunate to have such a wide spectrum of choices and work that we want to do, to be able to express ourselves as artists. I think this is a massive and the most basic जैसे बोलते हैं achievement or the most basic requirement when it comes to being able to exercise not just your speech but what you want to do in life. And you're right, cinema is a soft power, and there's something very interesting and very true what Honorable Prime Minister said today in his speech towards the end, that हर एक का प्रयास ज़रूरी है. And that just for me becomes, that's how I think, that it becomes really an added responsibility that no matter what I do, be it in my capacity as an actor or an entrepreneur or a citizen or anything, be it something as basic but most important I feel is Swachh Bharat Abhiyan. I have really gone out and I don't put everything on social media, but literally gone, हमारा हिमाचल में एक छोटा सा घर है, सब बच्चों को बिठाकर, you know how they eat that chips packet and the toffee, मैंने कहा वो सुना है ना तो वैसे करना है ना, आपने वो छिलका फेंकना है ना किसी को फेंकने देना है, आपने उठाना है. So something as basic as that, तो and they understand, they get it. It's just about the right conditioning. From that till the national security, जैसे उरी अगर आप आर्टिकल 370 की बात करें कि इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस हुए हैं और हो जाते हैं, हमें शायद पता भी नहीं चलता. And here we are, we had an opportunity being a part of the industry to tell it to the world, to take our story ahead, and through the entertainment medium. So when it comes to security, absolutely, as a citizen, अगर हम stats भी खोल लें, अगर हम देखें भी, अगर strictly talking about, unfortunately, all the attacks that had happened or used to happen, I think it's a different demography altogether. And of course, we're still battling. I mean, we shot Article 370 in Kashmir, which I don't, there the police has to tackle not just local crimes, but terrorism and national threat. But how are they working? How are the agencies working to the T? It's phenomenal. We feel really small at times that हमें कभी लगता है अपनी हमारी problems बहुत बड़ी हैं life की, but कुछ भी नहीं है. So I feel really proud to have him as our Prime Minister and to feel that the world is looking at India at such an important superpower and with so much respect. And so I'm really fortunate. यामी, एक करंट सिनेरियो जो अभी मुंबई में देखने को मिला, कुणाल कामरा स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, उन्होंने एकनाथ शिंदे जो डिप्टी सीएम हैं उनके ऊपर एक स्टैंड अप कॉमेडी में कमेंट किया जो कि शिव सैनिकों को रास नहीं आया, और जिस ऑडिटोरियम में, जिस हैबिटेट में ये शूट किया जा रहा था उसको शिव सैनिकों ने जाकर तोड़ दिया. इसके बाद एक बहस छिड़ी हुई है, ख़ास करके मुंबई में और भी ज़्यादा, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर ये हमला है. कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने जो बोला वो आपत्तिजनक था. शिव सैनिक कह रहे हैं कि इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. आपको लगता है क्या कि ये वाकई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर हमला है? ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. सुमीर जी, for some reason I have not seen that video. Please pardon me. मैं अभी एक फिल्म शूट कर रही हूँ, और जब मैं शूट करती हूँ एज अ रूल, of course I'm aware कि करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है, बट जो अगर आप सोशल मीडिया ऐसी कुछ बात करें, आई जस्ट लॉग आउट. सो आई हैव नो आइडिया व्हाट इज़ द न्यू ओपिनियन और व्हाट इज़ हैपनिंग. पर अगर आप कह रहे हैं, आई विल ऑल्सो लुक अप एंड वॉच. पर अगर अपार्ट फ्रॉम दिस इंसिडेंट, बिकॉज आई एम श्योर द अथॉरिटीज़ मस्ट बी लुकिंग इन टू इट, एज अ पॉलिसी आई नेवर कॉमेंट ऑन समथिंग विच इज़ ऑन एन इंसिडेंट विच इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन. आई बिलीव इट मस्ट बी अंडर इन्वेस्टिगेशन. Just as a citizen, I think I can say, while I know हमेशा हमें पहले अपने हक याद आता है कि ये मेरा हक है, जो अच्छी बात है, अवेयर ज़रूर होना चाहिए. पर जब मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था, मुझे याद है हक के साथ ही लाइन थी मेरी ड्यूटी. तो ये दोनों कहीं ना कहीं वो बोलते हैं सिक्के के दो पहलू हैं. तो वो बैलेंस रखना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है. और अगेन इट इज़ स्पेशली जब आप
पब्लिक मंच पे हो, ऑफ कोर्स एज आई सेड, हर एक की अपनी ओपिनियन है, हर एक का अपना तरीका है, एज लॉन्ग एज द डिग्निटी इज़ नॉट बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड, मस्ट। और अब इंटरनेट इज़ ओपन फॉर एवरीवन, लोग आपको सुनते हैं, लोग देखते हैं, और कुछ भी अगर सेंसेशनल हो तो वो हमेशा ही जल्दी फैलता है, अच्छाई थोड़ा वक्त लेती है पहुंचने में। आई वुड रियली, आई होप दैट जिनके पास भी माइक आता है, चाहे कोई भी हो, थोड़ा और थोड़ा और ध्यान से थोड़ा देख के कि आप स्पेशली जब आप यू आर बीइंग योर सेल्फ एंड यू आर एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ एज yourself, I'm not playing a character right now, that's for the films. इससे पहले एक नया सवाल है कि how about the moral responsibility of every character, how about you glorify this, that's a different thing, but when you're expressing yourself as you, of course I think I do think that it's important to be cautious. Well, my director is telling me that we are out of time, but I have to ask you quickly one question, if you could quickly answer in 30 seconds. You mentioned about a film that your husband Aditya Dar is making, and that is going to create waves for his birthday posts. What's this film all about? And also, what are you working on? That's a film called Dhurandhar, and without their official permission, but maybe by the virtue of being his better half, I'll take this opportunity to say, and I cannot say enough when it comes to Aditya. His passion, his idea of perfection, always in the pursuit of chasing greatness, is something that has made him reach till here. Aditya और धुरंधर जहाँ की बात है कि एस्पेनाज फिल्म है, थ्रिलर है, एक्शन है, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है, जो रेलेवेंट है आज के टाइम के लिए। ऑफ कोर्स अब पर जो लिखा है, जब मैंने पढ़ा, मुझे थोड़ा वक्त लगा अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करने में, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कभी पहले पढ़ा नहीं था, और मैंने कहा आई विश आदित्य फॉर वन मोमेंट आई वाज अ मैन एंड आई कुड प्ले दिस कैरेक्टर। और मुझे इतना पता है कि आदित्य अपनी ऑडियंस को बहुत वैल्यू करते हैं, एंड ही इज समवन हु कैन गेट द मासेस एंड द क्लासेस टुगेदर। तो जब वो फिल्म आएगी, आई एम श्योर दुनिया देखेगी। क्या बात है, और नाम से ही क्लियर हो रहा है धुरंधर, तो यानी हम ये मान कर चलें कि आर्टिकल 370 और उरी के बाद बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स एक और धमाकेदार फिल्म जिसका नाम है धुरंधर, आज यामी गौतम ने ऐलान कर दिया है टीवी 9 के इस मंच से। पर उसमें मैं नहीं हूँ, मेरी अलग फिल्म है। लेकिन आपको भी हम देखेंगे, आई एम श्योर, इन मेनी फिल्म्स। थैंक यू वेरी मच यामी गौतम, a round of applause for coming specially for this. Let me request Paritosh Chaturvedi, managing editor of TV9 Bharatvarsh, to come and honor the guest.